Today we'll see the user administration thing for the Linux one, and you requested for RHEL 10, Red Hat Enterprise Linux 10 to download, right, Akash? As of now, each and every Mhm. class is being done on Rocky 9 only. Okay, Okay. so I believe the Red Hat Enterprise Linux 10 OS, and they are preparing the syllabus for their courses right now. So it's not yet completely used in the market. So what we are doing is we are going through the Rocky 9 OS. Hmm? All the Okay. concepts So on Rocky so 9. this Rocky 9 is exactly similar to Same, RHL yeah, 9. same replica of RHEL 9. So in the end, Okay. what we will do, we will try to get through the differences from RHEL 9 and RHEL 10. Okay, Okay. so that you will be having that kind of exposure as well, right? Okay. Sure. Okay, yeah. So only Pawan has installed the OS and he has created the users, I think. Nobody else does. Akash, you I have installed the OS. okay, not user creation. Oh, who is that? Akash? Yes. Okay, you Yeah. install the OS, but no user creation and all, right? Because So we I didn't. only created one primary user, the one that we create during the installation. Okay, you use the same command, user add and username, right? Yeah. Okay, okay, fine. Let me see how to present it. Start from present view. Okay, fine. Yep. So basically, we are going through the what you call the user administration thing today, and oh man, what is it? How to put the present view here? We'll go through the theory plus then we'll try to add the users and try to what you call delete the users and modify the users on the machine using the command line. Okay, yeah, let me go through from here itself. Okay, so what is user administration? Basically we are going through the server administration thing. Okay, server administration course, and the OS itself is a server operating system. So definitely they are going to be the users on the server. Okay, they are going to be multiple users that needs to be managed by you. Once you gone through this user administration whole concept, you will be able to add the user, you will be able to modify the user, you will be able to delete the user. Okay, whatever the permission you wanted to give to that particular user, you will be able to do that. This is what the this particular topic covers. So that is what is user administration means, the same thing which I explained right now. And another create this creation, modification, deletion of user accounts, assigning users to a groups. Let's say there is some certain set of groups in the in your environment, like development group is there, marketing group is there, and in between there should be some collaboration. Okay, so during that collaboration or because of that collaboration, you should be having that kind of capability to provide the access across the groups. So that's what this topic covers. And authentication methods, like which authentication methods will use, basically the PAM pluggable authentication modules which are inbuilt in the OS, and integrations, example LDAP and triple SD. LDAP is an lightweight directory access protocol which will be useful because it is not going to be like you are going to create a users on the machine and that particular user is going to log in from that machine itself, right? It should be centralized user management. So in that case, centralized user management, we have this kind of setup, like Active Directory is there from the Windows server, and from the Linux LDAP is there, right? Lightweight directory access protocol. So you need to configure users will be on centralized server, and those users will be able to log in on all the machines in the infra. So that is the different concept altogether. But I will give you the basic details of this one, like LDAP and Active Directory, how it will work and all. Default policies and system defaults via configuration files. Okay, that's fine. Leave that statement. And the next is why is it important? Like the major thing, like you should know all the user administration things are that will help you to secure your infra, right? This is the first and the foremost way of getting into the infra.
like anybody is having the user access, then he can directly log into your machine, or he can directly log into your infra, and he can do whatever he want to. So this plays the major important role of getting your security posture in a position where you can secure your all your organization assets, right? So that is what the important role plays the user administration. Accountability, security, least privilege, account control, accountability, and auditing who did what, right? Everybody should know, like which particular user is running. Not everybody, the infosec team will know which particular user is running which commands, so that they will be able to monitor all the activities on the server. Like it should not be like someone is coming and he is rebooting the machine, right? So that's what the thing is. They will monitor all the activities on the servers, which user is running which commands. And consistency, default policies, standard behavior should be there. And ease of management, like script and automation, those can be implemented to make it this user management thing better, in better approach, or in a better way you can handle all those things using this automation and script handling. Key files, okay. So if you are coming to any topic, you pick up any topic in the Linux, that particular topic will be having the specific files. Keep in mind, this mindset will help you, okay. तो ये याद रखो हमेशा, आप कौन सा भी टॉपिक देखोगे लिनक्स में, यूजर एडमिनिस्ट्रेशन देखो या सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन देखो या फिर परमिशन देखो, देयर शुड बी सम फाइल्स रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर द टास्क और द टॉपिक. सो आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होने के लिए बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू इज टॉपिक फर्स्ट, मतलब क्या यूसेज है, हाउ इट विल वर्क एंड ऑल दोस थिंग्स. देन व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक. देन द ट्रबल शूटिंग थिंग्स, ओके, और कमांड्स और ट्रबल शूटिंग थिंग्स. तो ये सीक्वेंस में आपको हर एक टॉपिक को याद रखना है. देन यू विल बी एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर. तो अभी की फाइल्स इन यूजर एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल्स, तो उसमें एक है etc password file. So what is the importance of etc password file is, whenever you create a user, at that time that user entry will get added to this file. Because of this entry, whenever you try to log into the machine, system reads entry from this file, and then only he will be able to log in into the machine. Okay, if entry is not there inside this etc password, he won't be able to log in. If you want to delete a user from the if you want to delete access to the user, then you can delete the whole line from the password file, or you can use the command so that you can log that user. What are the different fields are available in the password files are username, the first field, password placeholder, the second one, okay, I will show you by by practically later. And the third one is UID, that particular user UID will be there. And group ID, this should be the primary group ID. There are groups, primary and secondary. So what is primary and what is secondary, we'll see while we are looking into the group administration. तो फर्स्ट क्या रहेगा, यूजर नेम. सेकंड पासवर्ड प्लेस होल्डर मीन्स ओनली क्रॉस रहेगा, देर विल नॉट बी द पासवर्ड. एंड थर्ड इज यूआईडी रहेगा, फोर्थ जीआईडी रहेगा. एंड सिक्स्थ इज फुल नेम और कमेंट. लेट्स से Akash is there in the infra and he belongs to service desk team. So what people usually do, whenever the user is been creating in the infra, the comment can be put it as a service desk team, so that anybody comes in, he will be able to identify, okay, Akash belongs to this particular team. So that is the usage of this particular field. And next is home directory, like which is the home directory, like whenever the user logs in, तो उस टाइम पे उसका कौन सा डायरेक्टरी, डिफॉल्ट डायरेक्टरी रहना चाहिए जहाँ पे ही कैन क्रिएट द फाइल्स एंड फोल्डर्स. एंड लास्ट इज डिफॉल्ट लॉगिन शेल. तो ये शेल मैंने जो कल बताया था आपको, अभी डिफॉल्ट शेल जो ये है अभी रॉकी 9 पे, विच वन इट इज, आई शोन यू, किसी को याद है? Bash. Yes, bash shell is the default for all the rel flavor machines. And there are people who belongs to some development team, yeah, who belongs to some other activities, operational things. So they need some certain set of shells, so they can request you to change my shell to some another shell, like CSH is there, TCSH is there, right, KSH is there. So they will request you to get me that shells. Then you need to modify this particular field. You can do that by getting into the file, you can do that by just using the command that we will see. And example entry you could see here, John is the user, this is the password placeholder X, right?
and 1001 is the UID, 1001 is the primary group GID, primary group GID, remember, okay? And the third is the name or comment. You can put it as, you know, anything, name, or, you know, the comment of his comment which belongs to his team. And home directory, the normal user's home directory resides under which particular directory, guys? Home. /home, be Yeah, slash home. precise. Yeah, /home is the, you know, default directory for all the normal users, and by default the user directory will get created under the /home, and the shell is /bin/bash. So this is how the entry looks like in the etc password file. And whenever you create readable by all users, if you know, restrict the readable permission to other users, then user won't be able to log in. तो अभी यहाँ पे ये जो एंट्री है, ये एंट्री अपन मैन्युअली ऐड कर सकते हैं, एंड यू कैन जस्ट यूज यूजर ऐड स्पेस यूजर नेम. सो बाय डिफॉल्ट ये वाला एंट्री ऐड होगा etc पासवर्ड फाइल में. देयर शुड बी, you know, differences in UID, GID, right? But this is what the standard entry which gets added into password file. And the next important file is etc shadow, /etc/shadow. All the configuration files will resides under which directory? /etc. Right. So what is the purpose of this file is stores encrypted passwords and password aging information. So basically you know, in the organization एक standard workflow follow किया जाता है जहाँ पे यूजर का पासवर्ड हर 30 days या 90 days में चेंज होना चाहिए. And why, you know, that mechanism will work in the backend is because of this etc shadow. This is one local user example, but in the centralized environment as well we can put those details. तो ये लोकल यूजर मतलब सिस्टम, अभी यहाँ पे अगर यूजर क्रिएट करूंगा मैं ऑन दिस मशीन, ही विल बी एबल टू लॉग इन ओनली ऑन दिस मशीन, राइट? सो दीज पैरामीटर्स विल अफेक्ट ओनली दैट यूजर, मतलब जो मशीन पे यूजर है उसको ही पैरामीटर अफेक्ट करेगा. वी आर नॉट गेटिंग इन टू द सेंट्रलाइज्ड यूजर मैनेजमेंट, दिस इज द लोकल यूजर मैनेजमेंट. तो यहाँ पे 9 फील्ड्स रहेंगे. इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन केस, यू नो, आई डोंट नो वेदर ही विल आस्क और नॉट, बट दैट इज द प्रोबेबिलिटी. लाइक what are the, you know, different fields in available in the etc shadow file. तो आपको 9 के 9 fields बोलने पड़ेंगे. सो रिमेंबर इट, 9 fields है. एक पहला क्वेश्चन रहेगा कितने fields रहते हैं, राइट? उसके बाद क्वेश्चन रहेगा कि 9 fields में क्या क्या है, कौन सा फील्ड का इंपॉर्टेंस क्या है, तो आपको सब पता रहना चाहिए. सो बेसिकली इट कंटेन्स यूजर नेम, अगेन एनक्रिप्टेड पासवर्ड, जो भी अपना पासवर्ड, अभी टॉम यूजर ऐड किया था हमने, एंड पासवर्ड स्पेस टॉम यूजर दिया था, एंटर मारा था, हमने कुछ पासवर्ड दिया था. तो सेम टू सेम पासवर्ड विल नॉट बी देयर इन द फाइल. It will encrypt that password into some other, you know, characters, and that characters will get showed up here etc shadow में. ठीक है. second field, third one is last password change date, कब पासवर्ड चेंज किया था आपने, या फिर द ऑप्शन इज अवेलेबल टू चेंज. इट विल हैंडल ऑल द पासवर्ड एजिंग इन्फॉर्मेशन. लाइक हर एक यूज़र का एक पासवर्ड का एक सिनेरियो रहता है जहाँ की ये 30 डेज में ये अकाउंट एक्सपायर होना चाहिए, उससे पहले 8 दिन पहले उसको अलर्ट आना चाहिए, ठीक है, कि आपका पासवर्ड एक्सपायर होने वाला है, राइट? तो ऑल दिस इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फाइल. लाइक मिनिमम डेज बिटवीन पासवर्ड चेंजेस, कितने डेज का गैप चाहिए आपको पासवर्ड चेंज करने के इन बिटवीन इंटरवल में. मैक्सिमम डेज पासवर्ड इज वैलिड, कब तक ये पासवर्ड वैलिड रहेगा. लेट्स से 30 days, 60 days, है ना, 45 days. यू कैन मेंशन दोज पैरामीटर्स हियर. वार्निंग डेज बिफोर एक्सपायरेशन, एक्सपायर होने से पहले कितने दिन पहले आपको अलर्ट आना चाहिए या फिर वार्निंग आना चाहिए. इनएक्टिव डेज आफ्टर एक्सपायरेशन, इनएक्टिव डेज मतलब दैट विल, यू वोंट बी एबल टू लॉग इन. एक्सपायर होने के बाद यू विल गेट अ ऑप्शन टू चेंज द पासवर्ड. It will give you the prompt to change the password because the account is not yet locked right now or inactive right now. You can change it and you can use that account again. Account expiration date, this is the final, you know, thing. An example entry ऐसा रहेगा, you can see this entry, okay? So I request everybody to try it out, this particular entry, go through this information and try to expire the account, okay? Try to put the dates as in a such way where the account will get expired in one day and change the date of the computer, okay? Try this example. This is for extra activities. Nobody will, you know, ask you in such a deep dive thing, okay? What people try to understand is you should know what is the etc shadow and you should know what are the different fields in the etc shadow. That's it, because nobody is using the local user management in the infra.
ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, जो मैंने अभी यहाँ तक इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन दिया है, दिस शुड एवरीबडी शुड नो दिस, दिस ऑल फील्ड्स फ्रॉम द ईटीसी शैडो। तो इसमें बेसिकली क्वेश्चन ये रहेगा, फाइल नेम क्या यूसेज है फाइल का, एंड व्हाट आर द डिफरेंट फील्ड्स, ओके, कितने फील्ड रहेंगे। एंड थर्ड इज ईटीसी ग्रुप। So we'll do one thing, we'll get through the user administration thing first, then we'll come to the group one, okay? Let me open the shell, okay, ठीक है। So I already logged in using which user, tell me, who will tell me using which user I logged in on the machine? Tom. Who is that? Pawan, okay. And what about Sagar and Akash? Yeah, Tom. Tom showing me. Okay. So बिफोर गिविंग द आंसर मुझे ये बताओ, ये पूरा सिंटैक्स का मीनिंग क्या है, पहले स्टार्टिंग से बताओ, क्या मीनिंग है इसका, शुरुआत क्या है, रूट क्या रूट मतलब है, हाँ, क्या मतलब है उसका, लाइक रूट यूजर कर रहा है, लाइक रूट यूजर कर रहा है मतलब क्या कर रहा है, क्या है मतलब, मैंने ये 2-3 बार बताया आपको कि इतना जो सिंटैक्स है इसका मीनिंग क्या है, मैंने बताया था, राइट, याद है आपको नहीं है? एडमिन एक्सेस से root means not the admin access, Sagar. Root means, listen, root means he is the admin in the Linux machine. Linux में root को administrator बोला जाता है, so don't say the admin access, say it as a he is the admin, okay? Root is the boss, okay? Root is the boss, you could say, ठीक है? तो root is the user as well, बराबर है? तो अभी ये मुझे रीड करके बताओ, कौन करेगा, कोई तो करो, गलत हुआ तो चलेगा, नो वरीज, बट एटलीस्ट ट्राई, नीड टू ट्राई, राइट? So root at master means like master is a host name. हाँ, And root is the logged in user, but we opened Tom after that. okay. Okay, at least you tried reading the whole sentence, okay? तो इसका मीनिंग ये है, ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ, ओके? पवन एंड सागर, बोथ ऑफ यू, पहले क्या बोल रहा है ये, रूट एट द रेट मास्टर, दिस मीन्स क्या है, लॉग्ड इन यूजिंग रूट ऑन मास्टर सर्वर, दैट्स इट, ठीक है? उसके बाद क्या रहेगा उसका कुछ लेना देना नहीं है अपने को, एंड ऑल्सो दिस इज ओनली, दिस थिंग इज इनफ टू अंडरस्टैंड यूजिंग विच यूजर यू लॉग्ड इन, बराबर है? हैश मीन्स व्हाट, come on, hash means what? Normal user. No, Akash, not normal user. Hash means Okay. root Yeah, user. hash means हाँ, root and dollar means normal. and dollar means normal user. तो hash आया है यहाँ पे, that means he is the root, खत्म बात, ओके? अभी यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने पहले टॉम से लॉगिन किया था, ओके? इफ यू लुक एट दिस, कहाँ पे, यहाँ पे, ओके? यहाँ से टॉम सर्वर से सॉरी, ये यहाँ से पहले मैंने टॉम यूजर से लॉगिन किया, टॉम एट द रेट मास्टर आई मीन, ओके? देन व्हाट आई ट्राइड sudo su, तो इट डजंट वर्क, तो मैंने यहाँ पे su किया तो इट वर्क, सो स्विच यूजर टू रूट यूजर नाउ, फ्रॉम हियर टॉम टू रूट, बराबर है? बट when I switched the user, I didn't use hyphen. What hyphen will do, it will come out of this tom user home directory and it will get into the root user home directory. मैंने सिर्फ स्विच यूजर किया था, सो जहाँ पे मैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में था वहीं से ये रूट यूजर को स्विच हुआ है, सो टॉम मीन्स आई एम इनसाइड दी /home/tom। अभी मैं यहाँ पे ऐसा मारूंगा, सो /home/tom दिख, उसलिए दैट इज वाई इट इज शोइंग एज टॉम डायरेक्टरी, ओके? ठीक है, समझ में है? Yes. पवन, कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, यस और एक पर, हाँ, ओके, और एक बार, यस। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, व्हाई आई एम एबल टू सी दिस टॉम हियर इज बिकॉज मैंने अभी यहाँ पे टॉम यूजर से लॉगिन किया पहले सर्वर पे, ये वाला नहीं है आईपी एड्रेस, ये वाला है, ओके? sshtom@IP एड्रेस, बराबर? तो ये लॉगिन करने के बाद आई केम इन टू वेयर, हियर tom@master, बराबर? आई लॉग्ड इन यूजिंग टॉम यूजर, दैट इज फाइन, इट्स डन। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, sudo su किया था,
where my Tom user is not part of sudo thing, so that is why I got this error message. So ignore करो इसको. Okay. You don't know anything about this, Okay. so ignore it. अभी नेक्स्ट थिंग क्या है, टॉम यूजर से लॉग इन हो चुका हूँ मैं, तो आई यूज यस यू मीन्स This is okay. स्विच यूजर. ओके, तो मैंने सिर्फ यस यू यूज किया है, लेकिन स्पेस माइनस हाइफन यूज नहीं किया. ओके, स्पेस हाइफन यूज नहीं किया मैंने यहाँ पे. तो ये क्या किया, स्विच यूजर टू टॉम टू रूट, बट इट वॉज देयर इनसाइड द स्लैश होम स्लैश टॉम. तो डायरेक्टरी चेंज नहीं किया उसने उसका टॉम यूजर का, सो दैट इज वाई इट इज शोइंग एज अ टॉम. अभी ये प्रैक्टिकली शो करके दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट. अभी आई एम इनसाइड द टॉम, राइट? Yeah. ओके, नाउ आई एम इनसाइड द स्लैश होम स्लैश टॉम. अभी मैं एस यू करूँगा Yeah. यहाँ पे, एंटर करूँगा, सो आई विल गेट इनटू द रूट यूजर, बट स्टिल आई एम इनसाइड Okay, द user टॉम change. डायरेक्ट. यूजर चेंज हुआ, लेकिन the term डायरेक्टरी but- चेंज नहीं हुआ, लेकिन टर्म के अंदर ही है. टॉम के अंदर ही है. तो अभी अगर इसको ऐसा चेंज करना है, सो व्हाट आई कैन डू, एस यू माइनस करूँगा, देन इट विल गेट इनटू द Okay. डायरेक्ट रूट यूजर होम डायरेक्टरी. सी, Okay. समझ में है? समझ में आया सर. So this तो is the- अभी रूट @ मास्टर टर्म बोल के है हाँ जो हम लास्ट में देखे, तो हाँ. उसमें क्या मीनिंग बनता है? लाइक रूट यूजर है लेकिन टॉम एक डायरेक्टरी इसमें है, मतलब हाँ, यूजर है. टॉम एक डायरेक्टरी था. सो वट एवर द नेक्स्ट थिंग विल बी देयर, दैट विल बी द डायरेक्टरी. नाउ इफ आई गो टू सेट, लेट मी जस्ट होल्ड अनदर एग्जांपल. नाउ आई एम लॉग्ड इन एज अ टॉम यूजर नाउ, राइट? तो मैं यहाँ पे करूँगा, क्या करेंगे, डेवलपर डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ. ठीक है, अभी मैं जाऊँगा डेवलपर में, टॉम के अंदर ही डेवलपर है, तो अभी मैं हूँ स्लैश होम टॉम डेवलपर, बराबर? अभी टॉम यूजर बन गया, डेवलपर डायरेक्टरी है. हाँ, डेवलपर डायरेक्टरी है, यूजर तो टॉम ही रहेगा ना, बन गए क्या, पहले से टॉम यूजर है. ओके, या तो अभी मैं इनसाइड दी स्लैश होम स्लैश टॉम एंड डेवलपर डायरेक्टरी हूँ. सो इफ आई डू एस यू नाउ, रूट @ मास्टर डेवलपर में आएगा. Okay. डेवलपर, दिस इज जस्ट एन डायरेक्टरी. ओके, वट एवर द थर्ड पॉइंट इज शोइंग अप ओवर हियर, दैट इज एन डायरेक्टरी. तो अगर मुझे डायरेक्ट Okay. होम डायरेक्टरी में जाना है किसी भी यूजर में स्विच करने के बाद, आई नीड टू यूज माइनस. सो इट विल गेट यू टू द यूजर होम डायरेक्टरी, नॉट द यूजर. Okay. अभी मैं कहाँ पे हूँ, रूट में हूँ. हम्म, समझ में है? Okay. या आकाश सागर समझ ला करे. हो. ओके, ओके कूल. तो अभी नेक्स्ट क्या है अपना. ओके, यूजर एडमिनिस्ट्रेशन का मैं क्रिएट करके देता हूँ आपको यूजर्स. ओके, तो नाउ विल डू वन थिंग, विल ट्राई टू क्रिएट, आई हैव दिस फाइल सेव्ड इन यूजर एडमिनिस्ट्रेशन थिंग, लॉगिन, डिफॉल्ट यूजर ऐड, ऐड न्यू यूजर. ओके, अभी ये वाला ऐड न्यू यूजर है, तो यूजर ऐड इज द कमांड टू ऐड द यूजर ऑन द लिनक्स मशीन. ठीक है, सिंटैक्स क्या रहेगा, यूजर ऐड स्पेस ऑप्शंस स्पेस यूजर नेम, जो भी यूजर आपको ऐड करना है उसका नाम. सो दिस इज द स्टैंडर्ड सिंटैक्स ऑफ एडिंग यूजर्स ऑन द लिनक्स मशीन. और ऑप्शंस क्या क्या यूज कर सकते हैं उसके साथ, वन इज हाइफन यू, दैट मीन्स यू आई डी, यू कैन सेट द कस्टम यू आई डी. जैसा हमने देखा था पासवर्ड फाइल का एंट्री, ETC पासवर्ड में 1001 UID था, कौन सा, जॉन यूजर का, राइट? तो उसको अगर कस्टम करना है, सो यू कैन डू दैट. You can put it as 1002, 1003, whatever the UID you want, you can put it as. But make sure कि that UID is not used. Okay? और दूसरा है small g. Small g, हाँ, I am referring small g, capital G this way. So remember that. Small g means this will be the primary group. प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप क्या है, जब अपन प्रैक्टिस करेंगे, जब कुछ फाइल शेयरिंग या फिर कुछ परमिशन थिंक करेंगे, तो देन यू विल कम टू नो. फॉर नाउ रिमेंबर इट एज अ प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप. ओके, एंड कैपिटल जी का ऑप्शन का यूज है क्या, सेकेंडरी ग्रुप का, मतलब ग्रुप 1 ग्रुप 2 ऐड अ सप्लीमेंट्री ग्रुप्स, दैट मीन्स सेकेंडरी ग्रुप्स. यूजर शुड बी पार्ट ऑफ वन सिंगल, अभी यूजर है कौन सा, सर्विस डेस्क टीम का. सो प्राइमरी ग्रुप ऑफ दैट यूजर विल बी द सर्विस डेस्क. ओके, और सेकेंडरी ग्रुप क्या है, आकाश किस किस यूजर से बात करता है या फिर किस अदर टीम से कोलैबोरेट करता है. बेसिकली मोस्ट कोलैबोरेशन किस टीम से है, मार्केटिंग से है. सो ही शुड बी पार्ट ऑफ मार्केटिंग टीम एज वेल, बट दैट ग्रुप शुड बी विल बी द सेकेंडरी ग्रुप. समझ में आए?
मतलब जो अपना रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसमें अपना प्राइमरी ग्रुप रहेगा. अभी मैं क्लाउड से हूँ, सो माय प्राइमरी ग्रुप विल बी द क्लाउड रहेगा. और सेकेंडरी क्या रहेगा, सब यूजर्स मतलब अदर टीम्स लाइक जिसके साथ भी मैं काम करता हूँ, जिनके लिए भी काम करता हूँ, उनका जो ग्रुप्स रहेंगे वो सेकेंडरी ग्रुप्स एज ऐड हो जाएंगे मेरे इसमें. ठीक है, दिस इज जन वन एग्जाम्पल. उसके बाद है हाइफन डी, स्मॉल डी मतलब होम डायरेक्टरी डिफाइन कर सकते हो. हाइफन एस स्मॉल इट इज ऑल्सो. So you can put the shell for the user. Small l can be used, s can be used for the shell, and small c can be used to add the comment to the user, and hyphen e can be put it as a for the expiration date. What is set account expiration date. अभी ये एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ मैं प्रैक्टिकली, सो जस्ट फोकस. अभी विल डू वन थिंग. सो यूजर ऐड Lisa. Okay, user add is the command to add the user, and I'm adding the Lisa user but with the default parameters. I'm not going to change anything like username change नहीं कर रहा हूँ, sorry, UID change नहीं कर रहा हूँ, primary group change नहीं कर रहा हूँ, secondary group change नहीं कर रहा हूँ, और कमेंट नहीं है, शेल नहीं है, होम नहीं है. जो भी डिफॉल्ट पैरामीटर सिस्टम वाइज डिफाइंड है वही पैरामीटर लेगा एंड यूजर विल गेट क्रिएटेड. लेट्स से यूजर ऐड Lisa. Now how to identify whether Lisa is added on the machine or not is id is the command to identify the user details. ठीक है, id space Lisa यूजर नेम टाइप करना पड़ेगा आपको. तो इट विल गिव यू लेट्स से id रॉकी अगर करूंगा मैं, रॉकी यूजर इज नॉट देयर, सो व्हाट इट विल डू, रॉकी नो सच यूजर बोल के बताएगा, क्योंकि इट विल रेफर टू द फाइल पासवर्ड फाइल एंड इट विल कम बैक विद द आउटपुट. ओके, तो अभी यहाँ पे मैं id Lisa किया तो आई गॉट व्हाट यूजर id 1003, GID is 1003, and groups only one group is there, so it is showing as 1003. अभी मुझे रीड करना है पासवर्ड फाइल, तो लेस कमांड हमने नहीं लिया, तो लुक एट द लेस कमांड नाउ. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैट एंड लेस, आप लोग बताओ मुझे ये देखने के बाद. अभी लेस में हूँ मैं, सो लास्ट लाइन इज Lisa. सी ये ऐड हो चुका है यहाँ पे, एंड द डिफॉल्ट थिंग्स आर Lisa, पासवर्ड प्लेस होल्डर 1003 एज द UID, 1003 as the primary group GID, and this is the comment section में कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने डिफॉल्ट एंट्री दिया, डिफॉल्ट में कमेंट ऐड नहीं होता है. सो यहाँ पे होम डायरेक्टरी है होम Lisa एंड शेल इज bin bash. ठीक है, अभी ये डिफॉल्ट एंट्री हो चुका है. नाउ इफ यू वांट टू you added the user and you want to give the permission to log in to the user, then you should be having the password for the user. Okay, password is the command to assign password to any user. If you type password space enter, then it will by default it will take password for root user. मतलब रूट के लिए वो पासवर्ड चेंज करने का ट्राई करेगा. अगर पासवर्ड स्पेस यूजर नेम दोगे तो व्हाट इट विल डू, इट विल ट्राई टू चेंज द पासवर्ड फॉर Lisa यूजर. एंटर, ऐड द पासवर्ड अगेन, ऐड द पासवर्ड अगेन. ओ सॉरी, वो मिसमैच हुआ है इसलिए नहीं चला. तो 2 बार पासवर्ड देने के बाद यू कैन लॉग इन, कम आउट ऑफ रूट यूजर एंड यू कैन स्विच यूजर अगेन टू वेयर Lisa. एंटर, अभी पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड दे दिया मैंने, आई एम इनसाइड दी /home/Lisa. समझ में आया गाइस? यस यस. हाँ, मतलब एकदम कॉन्फिडेंट वाला चीज चाहिए तो मुझे, क्योंकि Lisa जो ये है वो इसके लिए कंटेंट रीड करने के लिए भी और क्रिएट करने के लिए भी यूज होता है ना. सागर तू लक्ष देतोय भावा माझ्याकडे, एक क्वेश्चन आहे हो. माझा प्लीज. का म्हणजे Lisa हे काय आहे नेमकं, मी काय म्हणलो, Lisa आपण काय काय क्रिएट करतोय असं म्हणलो, आपण काय टॉपिक बघतोय आता प्रेझेंटली, यूजर युजर ऍडमिनिस्ट्रेशन, बरोबर. तर Lisa हे काय आहे, यूजर युजर आहे. तर आपण युजर क्रिएट केलोय रीड करण्यासाठी, म्हणजे समजलं नाही मला, म्हणजे तुला कन्फ्युजन कुठे आहे मला ते सॉल्व्ह करायचं, मला सांग बरं काय प्रॉब्लेम आहे सागर. गॉट इट. नाही नाही, आपण कमांड कुठली यूज केली ती. कमांड इज युजर ऍड. ओके. युजर ॲज द डिफॉल्ट कमांड टू ॲड द युजर. ओके. हा, म्हणजे आता कन्फ्युजन क्लिअर आहे का, आणखी काय असेल तर मला सांग. नाही समजलं. डन. ओके, आकाश. हो समजलं. हा, सो Lisa यूजर ऍड केलो आपण, त्याला स्विच केलो. पवन अर्थమైందా? అర్థమైంది.
हा ओके అయితే మనం లీసా యూజర్ యాడ్ చేసి लेसचं मिनिंग विचारत होतो मी, सॉरी लिसा तोंड झालं Like लेसचं मीनिंग ओके लेस आपण रीड सॉरी, केलो ते लिसा मी म्हणलं चुकून ते मला लेस विचारायचं की लेसचं हा म्हणजे लेस काय? कमांड आहे फाईल रीड करण्यासाठी समजलं का तेच मी म्हणत होतो की लेस कमांड ते ऍड युजर करण्यासाठी रीड हा मी करण्यासाठी. तेच कन्फ्युज झालो एवढं क्लिअर मी सांगतोय युजर ऍड करायचं मग हा रीड मला का लेस करतोय विचारत होतं मला तोंड. ठीक आहे बरोबर ठीक आहे आहे तर लेस कमांड हे रीड करण्यासाठी आहे फाईल रीड करण्यासाठी कॅट कमांड केलं तर काय होते हे बघ कॅट ETC पासवर्ड तेच केलो तुम्ही जे डिफरन्स विचारलं ना की हा कॅट आणि तेच लेसचा डिफरन्स सांगा, मग मी तेच सांगत होतो की विचारत होतो की दोन्ही कॅट कंटेंट रीड करू शकतो ना, आणि लेसनी युजर ऍड करून कंटेंट पण रीड होतो, बरोबर ना? नाही लेसने आपण लेस कुठे यूज केलोय तर युजर ऍड करायला नाही, खाली ते रूट लेस हे वाला हा ते हे वाला लेस रीड केलोय मी फाईल युजर ऍड नाही केले इथे मी फक्त रीड केलोय फाईल ओपन केलो तुम्ही हे कमांडने मी दाखवतो आता कमांडचा युसेज दाखवतो एक मिनिट थांब ओके. कॅट ETC पासवर्ड म्हणल्यानंतर हे पूर्ण फाईल रीड करून डेड एंडला आलो आपण समजले म्हणजे हे एकदम फाईलमध्ये जे कंटेंट आहे ते रीड करून सोडून देते समजले का इथं इथं बघ इथं कॅट कमांड वापरलो ओके हा तेच. हाँ इथं आउटपुट डायरेक्ट लास्टला मी प्रॉम्प्टला आलोय पवन हम लोग कैट कमांड यूज करने के बाद सीधा फाइल में जितना कंटेंट है वो रीड होके आप यू विल कम टू द प्रॉम्प्ट फॉर द कैट कमांड अगर यही ऑप्शन मैं लेस से यूज करता हूँ तो यू वोंट बी हैविंग द प्रॉम्प्ट हियर व्हाट इट विल डू इट विल रीड द कंटेंट पेज वाइज ये पूरा वन पेज है शुरुआत से लाइन यहाँ तक है ये वन पेज है एंड इफ यू प्रेस द स्पेस बार देन इट विल गो टू द सेकंड पेज एंड सेकंड पेज के लिए हमारे पास कंटेंट ज़्यादा नहीं है तो इसलिए ये शो कर रहा है 3 लाइन्स और टू कम आउट ऑफ दिस लेस कमांड यू नीड टू प्रेस Q अभी यहाँ पे एंड हुआ फाइल का बराबर है इट इज़ नॉट लाइक कैट की तरह रीड करके डायरेक्ट प्रॉम्प्ट मिला आपको एंड यू कैन टाइप द अदर कमांड्स नो व्हाट इट विल डू लेस स्पेस फाइल नेम दोगे तो इट विल रीड द फाइल इट विल शो द पेज वाइज कंटेंट ऑन द स्क्रीन अगर आपके पेज में आपके फाइल में 10 पेजेस है तो you need to press space bar to go to the end of the file to read through all the file and when you want to come out you can press the Q ऐसा कंपलसरी नहीं है पूरा फाइल रीड करने के बाद ही आपको बाहर आना है यू कैन कम आउट ऑफ द फाइल एनी टाइम अगर अभी मैं एंड पे हूँ आई एम कमिंग आउट ऑफ फ्रॉम द लेस इज Q एंड इफ आई टाइप दिस एंड आई एम ऑन द फर्स्ट पेज नाउ एंड इफ आई क्लिक ऑन Q आई विल कम आउट ऑफ दिस फाइल ठीक है समझ में आया ये वाला गाइज क्या हो रहा है Yes. सर कैट में भी वही बात है ना, बोले तो पेज रीड कर रहा है, इसमें पेजेस वाइज रह रहे हैं, बोले तो क्या डिफरेंस? वही डिफरेंस ही बताया मैंने अभी अभी देखो कैट और ETC पासवर्ड करूंगा मैं ओ हाँ तो अभी मैं यहाँ से रीड करने के बाद सीधा मैं प्रॉम्प्ट पे आया यू आर हैविंग दिस कमांड लाइन राइट नाउ सी या ओके या वही अगर मैं लेस करूंगा so you are not going to the command line here what it will do ओके it will read the file page wise अगर वो Okay. फाइल में 10 पेजेस है तो you can read the file page wise the first page is this one and you can press the space bar it will show the second page and if you press the space bar again it will show the third page समझ में आया ओके so it won't come to Okay. the prompt directly it will be there inside the file you can go through all the file okay and then you want to come out of this you can press the Q ओके so you are pressing this it won't show you the content over the screen see यहाँ पे content screen पे show कर रहा है using the cat command या यहाँ पे क्या है कुछ भी नहीं है सिर्फ command है तुम्हारा you will get less space file name you will get into the file you will read the file you come out of the file that's it ओके समझ में है हाँ यस आकाश Yes, sir. समजलं का हो समजलं. ओके सर ओके सो डिफ़ॉल्ट यूज़र हमने ऐड किया था अभी with the default parameters what we will do we will change the UID now for the user okay yes u minus red hat okay I'm inside the now user mod hyphen u small u and the ID was बता सकता क्या ID था लीजा यूज़र का
1003. yes, तो 1003 था, तो आई एम गेटिंग इट एज अ 1004 नाउ. ओके, एंड यूजर इज लीजा. एंटर. तो अभी मैं अगर आईडी लीजा टाइप करूंगा, देन आई विल बी एबल टू सी यूआईडी एज अ 1004 एंड जीआईडी एज अ 1003. लेकिन कमांड क्या यूज किया हमने? यूजर मॉड, यूजर मॉडिफाई. यूजर ऐड करने के लिए यूजर ऐड करते हैं अपन, यूजर मॉडिफाई करने के लिए यूजर मॉड यूज करते हैं. ठीक है, समझ में है? सो दिस इज वन ऑप्शन. Again, if you want to change the GID of this particular thing, you can change to GID 1004 or doesn't exist. क्योंकि ये 1004 वाला ग्रुप एग्जिस्ट ही नहीं करता है. 1003 एग्जिस्ट करता है क्योंकि जब भी कोई यूज़र क्रिएट होता है तो उसके नाम से एक ग्रुप बन जाता है वहाँ पे, प्राइमरी ग्रुप. तो हम क्या कर रहे हैं, उसको प्राइमरी ग्रुप को चेंज करने का सोच रहे हैं, बट देर इज नो एग्जिस्टिंग प्राइमरी ग्रुप ऑन द मशीन. समझ में आया? अभी यहाँ पे ETC पासवर्ड में लीजा है, ये आउटपुट दिख रहा है आपको? Yes. हाँ, तो लीजा यूजर ऐड हुआ है, पासवर्ड प्लेस होल्डर है, 1003 पहले था. सो उसी आईडी से अनदर ग्रुप वाज गॉट क्रिएटेड 1003. तो ये इसका प्राइमरी ग्रुप था, एंड होम एंड शेल. तो अभी मैं क्या किया, मैंने 1004 आईडी चेंज कर दिया, एंड अगेन आई ट्राई टू चेंजिंग द ग्रुप टू 1004, बट 1004 क्रिएट ही नहीं हुआ है. सो इट इज सेइंग नो सच यूजर, डजंट ग्रुप, देयर इज नो सच ग्रुप. दैट्स व्हाट इट इज सेइंग. सो इफ यू वांट टू चेंज shell user mod, but before changing the shell, make sure that particular shell application, like other shell, if people wants the other shell, right, that shell should be installed on the machine. तो अभी क्या करेंगे अपन, -yes करेंगे. yes means shell, बराबर है. user mod -s and what the shell name is, bin sh only. so user name is Lisa. enter. now if I do ये वाला कमांड अभी मतलब इसको मत देखो, आई विल टेल यू लेटर. ओ सॉरी, क्या हुआ इसे? तो इफ यू लुक एट दिस Lisa यूजर नाउ फ्रॉम द पासवर्ड फाइल, यू कुड सी द शेल हैज बीन चेंज्ड फ्रॉम bin bash to bin sh. समझ में आया? क्या यूज किया हमने? यूजर मॉड -small s and the shell name which I wanted to change, this is already there on the machine, and the username for which user you want to change. तो हमने इस तरीके वो से एक क्वेश्चन है, एक बार रिपीट करो ना. जो GID है वो चेंज क्यों नहीं हुआ? मतलब यूजर आईडी हम लोग चेंज किया, बट वो डज नॉट एग्जिस्ट एरर, मतलब वापस एक बार रिपीट करो ना, क्यों शो किया वो? ओके, अभी एक काम करते हैं, यूजर ऐड सागर. ठीक है, हाँ. सागर के नाम से यूजर ऐड किया मैंने. ओके, अभी मैं ग्रेप कर रहा हूँ, मतलब सागर का कंटेंट देख रहा हूँ पासवर्ड फाइल से, बराबर. तो सागर के नाम से यूजर ऐड हुआ, यहाँ पे दिख रहा है. हाँ. 1005 यूआईडी मिला, इसको दिख रहा है. करेक्ट. हाँ, 1005 जीआईडी मिला, इसको दिख रहा है. यस. जीआईडी मतलब ETC ग्रुप अगर करोगे तो यहाँ पे जब भी आप यूजर ऐड करोगे, उसके नाम से, वही यूजर के नाम से एक ग्रुप क्रिएट होता है. ओके. तो उसका आईडी क्या है? 1005 है बाय डिफॉल्ट. अभी मैंने क्या किया था लास्ट केस में, लीजा ऐड किया था 1003 पे, एंड आई हैव ट्राइड टू चेंज टू 1004, बराबर है. हाँ, लेकिन 1004 का ग्रुप यहाँ पे है ही नहीं अपने सिस्टम पे, क्योंकि 1003 का लीजा एज अ ग्रुप नेम ऑलरेडी क्रिएटेड व्हेन यू एडेड द यूजर ऑन द मशीन. ओके. समझ में आया? ओके. तो अभी मैंने क्या किया, सागर का आईडी यहाँ पे 1005 के जगह 1006 कर दिया, एंड बट वो GID वही रहेगा, सेम GID ये सेम, ये प्राइमरी ग्रुप है. सागर इज द प्राइमरी ग्रुप ऑफ सागर यूजर. अभी मैंने क्या किया, बाद में 1006 को चेंज करने का कोशिश किया, बट यूर ग्रुप फाइल और ग्रुप यहाँ पे ग्रुप है ही नहीं 1006 वाला. तो उसलिए वो क्या बोला कि 1006 ग्रुप डजंट एग्जिस्ट. वो मॉडिफाई नहीं हो सकता. हाँ, मॉडिफाई नहीं हो सकता क्योंकि वो है ही नहीं ना. 1005 है लेकिन 1006 है, क्रिएट ही नहीं हुआ. तो आप क्यों चेंज कर रहे हो? आप क्या करो, पहले ग्रुप ऐड करो, फिर वो यूजर का ग्रुप आईडी जो है ना, वो ग्रुप के आईडी से मैच करो. करेक्ट. तो हम एग्जिस्टिंग ग्रुप आईडी को ऐड कर सकते हैं क्या? Yeah, you can do that. 1003 You can do that. See, now the group administration command is this one. For just now, ignore the command and all. We are going to see the group administration. अभी मैं यहाँ पे sales group ऐड कर रहा हूँ. ठीक है.
एंटर। अभी मैं अगर लेस ETC ग्रुप करूंगा तो सेल्स ग्रुप का आईडी क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, व्हाट इज 1006 आ गया। एंड समझ में आया आकाश? Yes. ओके, नाउ इफ आई डू यूजर मॉड हाइफन, कौन सा जी था वो, कैपिटल जी था फॉर सेकेंडरी ग्रुप, राइट, या स्मॉल जी था, प्राइमरी ग्रुप कर दिया मैंने। ओके 1006 और यूजर है लीजा, एंटर करूंगा। तो अभी अगर मैं लेस ETC पासवर्ड करूंगा तो यू कुड सी 1006 बिकॉज दैट सेल्स ग्रुप आई हैव क्रिएटेड माई सेल्फ। समझ में है? Yes. वो ग्रुप था वहां पे, तो इसलिए मैं आईडी चेंज कर पाया उसका। नाउ माय लीजा यूजर प्राइमरी ग्रुप इज सेल्स ग्रुप। जनरली whenever you add users, that particular username as a primary group will get added, but in this case ये 1006 का जो सेल्स ग्रुप था वो ऐड हुआ प्राइमरी ग्रुप। तो अभी ज़्यादा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड, डोंट थिंक कॉम्प्लिकेटेड। ओके, व्हाट यू कैन डू, यू कैन ट्राई ओनली यूजर ऐड कमांड फॉर नाउ, यू कैन ट्राई यूजर मॉड कमांड, फोकस ऑन द थिंग्स विच यू कैन चेंज। अभी ये सब चीज़ें अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेशन में जाएंगे, अभी आपको ग्रुप के बारे में नहीं पता। एक्चुअली हम लोग डीप में सोच रहे ना, नहीं वही बोल रहा हूँ। कमांड छोड़ के और जो ज्यादा सोच रहे तो वो थोड़ा ऐसा मतलब ऐसा कैसा हुआ, ऐसा क्वेश्चन आ रहे, ज्यादा क्वेश्चन आ रहे। हाँ नहीं कैसा डीप है, इन डीप मतलब पूछ रहे हैं, तो ऐसा हो रहा है हमारे साथ। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, जब ये टॉपिक नहीं पता तो अपने को डिस्कस करने के लिए फिर मुझे अलग तरीके से जाना पड़ेगा, समझ रहे हो? हाँ, तो आप ठीक है। क्या अभी करो, तो अभी आप जो समझ रहे हो खाली हम लोग कमांड पे फोकस जस्ट कमांड पे फोकस करो। इंपॉर्टेंट हाँ। चीज इसमें से समझने का 3 ही चीज है आपको। एक, हाँ। कौन सा फाइल इंपॉर्टेंट है, पहला चीज। दूसरा, कमांड्स कौन से इंपॉर्टेंट है। तीसरा, ऑप्शंस क्या यूज कर सकते हैं। बस अगर इतना प्रैक्टिस कर लोगे आप, तो जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे आपको चीजें दिमाग में आ जाएगी। हाँ, अभी इंटरफेस में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, तो इसलिए हाँ, ठीक है हम लोग अभी पहला कमांड पे। कमांड है यूजर ऐड, ओके, टू ऐड द यूजर। एंड दूसरा कमांड है यूजर मॉड, टू मॉडिफाई द पैरामीटर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग यूजर, ओके, इंपॉर्टेंस। और तीसरा क्या है, अभी किसी प्रॉब्लम यह है कि मैंने यूजर ऐड कर दिया, डिफॉल्ट वैल्यू के साथ चला गया, लेकिन मुझे रिक्वायरमेंट ऐसा है कि मैं यूजर ऐड करते वक्त ही सब कस्टमाइज करना है, बराबर। तो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, यूजर, जस्ट मोमेंट, यूजर ऐड, और यहाँ पे आप वो GID दे सकते हो, क्या है 1007, क्योंकि 1006 ऑलरेडी कंज्यूम्ड बाय अदर यूजर सेल सागर, तो 1007 एज अ प्राइमरी ग्रुप ID आई एम गिविंग इट, एंड हाइफन U 1007 अगेन, हाइफन कमेंट ही इज द बॉस, ओके। और हाइफन शेल क्या दूंगा मैं, स्लैश बिन स्लैश SH, एंड हाइफन D एज अ होम डायरेक्टरी स्लैश होम स्लैश यूजर नेम क्या होगा अपना, टीम, ठीक है, सॉरी टीम, एंड यूजर नेम इज टीम। अभी ये पैरामीटर समझ में आया पूरा, इसमें हमने सब कुछ यूज कर दिया। क्या है ये, प्राइमरी ग्रुप ID यूज किया, UID यूज किया, कौन सा UID चाहिए यूजर को, हाइफन C कमेंट ऐड किया हमने, हाइफन S शेल ऐड किया, एंड D से होम डायरेक्टरी ऐड किया, एंड यूजर नेम इज टीम। समझ में आया? मतलब डिफॉल्ट वैल्यू के जगह हम लोग कस्टमाइज वैल्यू दे रहे हैं यूजिंग द यूजर ऐड कमांड। इससे पहले हमने यूजर मॉड यूज किया क्योंकि वो एग्जिस्टिंग यूजर थे। अभी यूजर ऐड करते वक्त ही हम लोगों ने कस्टम पैरामीटर मेंशन करके वो यूजर का डिटेल्स दे दिया। अभी एंटर करूंगा, 1007 डजंट एग्जिस्ट, यस ग्रुप इज डजंट एग्जिस्ट, राइट। सो लेट मी remove the group. By default it will create the group, you don't need to add the group because that group itself is not there. एंटर। अभी मैं ID टीम करूंगा, एंटर। तो 1007 ग्रुप ID मिला इसको, क्योंकि ये क्रिएट कर चुका है ऑलरेडी इसके साथ। 1007 UID है इसका, एंड अगर मैं इसको करूंगा ग्रेप हाइफन आई टीम फ्रॉम ETC पासवर्ड करूंगा, तो यू कुड सी टीम इज द यूजर, पासवर्ड प्लेस होल्डर, 1007 एज द UID, 1007 एज द GID, he is the boss is the comment that I have added here, okay, and home directory is /home/team, and shell is /bin/sh। समझ में आया ये वाला थीम? Yes. आकाश? Yes, sir. हाँ, पवन అర్థమైందా? అర్థమైంది. Okay, user add, user mod, okay, these are the two commands. User mod is modify the existing users, user add is modifying the user add is you can customize the values while adding the users, ठीक है।
अभी ये हुआ यूजर एडमिनिस्ट्रेशन. पासवर्ड फाइल हमने देखा, शैडो फाइल हमने देखा, राइट. अभी विल गो टू द अदर फाइल्स in the Linux administration. We'll see the user administration, sorry. What is it? Let me come out of this user mode thing. etc shadow, etc group. Abhi the another important file for the group administration is etc group. हमने etc यूजर के लिए etc पासवर्ड देखा था, /etc पासवर्ड और /etc/shadow, और ग्रुप के लिए हम देख रहे हैं /etc/group इज द इम्पोर्टेंट फाइल. पर्पज क्या है? डिफाइन सिस्टम ग्रुप्स एंड यूजर मेंबरशिप्स. मतलब कौन सा यूजर किस ग्रुप में एडेड है, दैट यू कैन सी फ्रॉम दिस फाइल. एंड कंटेन्स ग्रुप नेम, group password placeholder. If you want to add the password to the group, you can do that. So that is the password placeholder. And GID, list of group members. कौन से यूजर इस ग्रुप में अवेलेबल है. Example entry is this one. Developer is the group. Password placeholder. Group ID is 1002. And John and Emma. These are the two users are part of this group. Developer group. Permission readable by all the users. तो ये वाला फाइल. And the other file is etc gshadow. The same way the the shadow file is there for the password. You are having this gshadow file for the group. Secure version of etc group with encrypted group passwords and admin roles. Contains group name, encrypted group password if used. अगर आप password create करोगे etc group में, then this password will be shown under the gshadow. And group administrator, कौन group administrator है वो particular group का, you will be able to see that name in that file. And group members, कौन से group members है into that particular group. जो भी group हम देख रहे हैं उसमें कौन से users available है, members है. Then permission is readable and writable only by root. सिर्फ root user का permission है, other users won't be able to see it. ठीक है, तो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे. आकाश, सागर एंड पवन. ओके, ग्रुप के बारे में हमने 2 फाइल्स देखा है. एंड विल सी द प्रैक्टिकल्स टुमारो. एंड अदर फ्यू फाइल्स आर देयर. ओके, आई विल शेयर दिस फाइल विथ यू राइट नाउ. ओके, दिस ppt, so that you are going to have the backup of all the notes and all. Okay, समजते आकाश, सागर? वारंवार विचारतोय, प्लीज. मी क्वेश्चन विचारतो, मला आन्सर पाहिजे. ठीक आहे ना? हो.